इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में 24th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और तेलंगाना के वजीर KTR ने किया इफ्तिताह। अकबरुद्दीन ओवैसी ने रेन बाजार में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। अवाम ने गुलपोशी करते हुए किया खैर मकदम। MLA पाशा कादरी समेत दीगर ने की शिरकत। कोविड के बढ़ते पॉजिटिव केसों के पेश नजर हरीश राव की महकमे सेहत को हिदायत। तीसरी लहर के दौरान मरीजों की जरूरियात को पूरा करने पूरी तरह तैयार रहने पर दिया जोर। TRS पार्टी ने कुत्तागुड़म MLA के बेटे को पार्टी से किया मुअत्तल। पार्टी जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर रेड्डी ने राघवेंद्र राव को फौरी असर के साथ मुअत्तल करने का किया ऐलान। कुत्तागुड़म MLA के बेटे रघुवेंद्र राव की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। तेलंगाना महिला कांग्रेस ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया एहतजाज। पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने किया पुराने शहर हैदराबाद का दौरा। चार मीनार के अतराफ अवाम से की मुलाकात। शहर में अमन की बरकरारी के लिए अवाम से ताउन हासिल रहने की जाहिर की उम्मीद। शहर हैदराबाद के HICC में 24th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह मरकजी वजीर बराए साइंस टेक्नोलॉजी और खलाई जितेंद्र सिंह और तेलंगाना के वजीर IT KTR ने किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में तेलंगाना के IT शोबे के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मरकज़ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मज़ीद इन स्पेस सेंटर्स खोलने के अमल में है और हैदराबाद मुजव्वज़ा मकामात में से एक होगा। वहीं रियासती वजीर KTR ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना स्टेट ने गुज़िश्ता 6 सालों में ई गवर्नेंस के ज़रिए बेहतरीन इक़दाम किए हैं। KTR ने रियासत तेलंगाना की कामयाबियों और सेक्टर में आगे बढ़ने की कोशिशों को देखते हुए रियासत के ITIR पॉलिसी पर नज़रसानी करने की मरकज़ी वजीर से दरख्वास्त की। As the CP grams is concerned, for which I must compliment Telangana has done appreciably well. We have now stepped into linking it with the central CP gram of the Department of Administrative Reforms headed by Mr. Srinivas. And that would be in keeping with Prime Minister's advice of one nation, one portal. So anybody sitting anywhere can lodge a grievance. You don't have to wait for the office hours or the office desk to open. You can use your mobile app. Even if at the middle of the night you get aggrieved by something, you can wake up and lodge a grievance. And it will get linked to the concerned departments across the country. Now we are also moving up to district level. We have done that for the Union Territory of Jammu and Kashmir. We are in the process of doing that for Uttar Pradesh. And similarly, as was being mentioned by the Honorable Minister when he was citing the Honorable Chief Minister, ultimately what should be the final goal or final objective of good governance? To my mind, and I think to every right thinking mind, would be to bring in ease of living in the life of a common citizen. National Conference on E-Governance. ఈ సందర్భంగా మంత్రి KTR మాట్లాడుతూ ఈ పాలనకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణకు ITIR పై కేంద్రం పునరాలోచన చేయాలని కోరారు. ఆవిష్కరణలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని, రాష్ట్రంలో IT శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని, IT ఎగుమతులతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ సర్వీసుల్లో తెలంగాణ అగ్రస్థానంలో ఉందన్నారు. Have been made by many state governments and central governments since independence to increase convenient and transparent service delivery using technology. Still, there are issues in quality of services rendered by the governments, and the processes followed are still archaic, which can certainly be improved. There's always scope for improvement.
Our Honorable Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao Garu, whenever we talk to him about technology, whenever we tell him about all the new things that are coming out as part of our emerging technologies wing, he only has one piece of advice to offer to the IT department and to the IT professionals and to the entire industry as well. Mi Seva has been completely re-engineered with technology and process changes and is rolled out as Mi Seva 2.0 in early 2017. It's a highly scalable platform serving on an average of 100,000 citizens, 1 lakh citizens every day through the 4,500 centers across the state of Telangana. As per e-Tal of the Government of India, Mi Seva ranks first in terms of number of e-transactions per thousand population. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज हल्के याखुतपुरा के बल्दी डिवीजन रेन बाजार में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर हल्के असम्बली याखुतपुरा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में आज मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बल्दी डिवीजन रेन बाजार का दौरा करते हुए 12,69,50,300 रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें सीमेंट रोड, बीटी रोड, सीसी रोड की तनसीब, ड्रेनेज लाइन की रीमॉडलिंग, नालों की रिटेनिंग वॉल की तामीर, ड्रेनेज लाइंस की तनसीब और दीगर तरक्याती काम शामिल हैं। इस मौके पर जगह जगह मुकामी लोगों ने हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी की कसरत से गुलपोशी करते हुए खैर मकदम किया और तरक्याती कामों के लिए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, इंचार्ज हल्का यासर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुताल्लिका महकमों के अहदेदार, मुकामी मजलिसी कायदीन कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में तकरीबन 12 करोड़ 70 लाख और चिल्लर 50,000 के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अभी हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी ने अंजाम दिया। ज़ेर सरपरस्ती नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट आज का यह प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। नकीब मिल्लत की मौसर नुमाइंदगी पर रैन बाजार हल्के में करोड़ों रुपये के तरक्याती काम मंजूर हुए, जिसमें से बहुत सारे काम कंप्लीट हुए और कुछ काम बाकी है, कुछ काम ज़ेर दौरा हैं। ये तमाम कामों का इफ्तिताह आज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने अंजाम दिया। इस मौके पर एरिया कॉरपोरेटर वासिउद्दीन साहब के अलावा मजलिस के तमाम याकूतपुरे के कॉरपोरेटर्स, सुदूर मोतमदीन मजालिस इब्तिदाई के कसीर तादाद में शरीक थे और दीगर हजरात भी इस प्रोग्राम में शिरकत किए। इन अल्लाह के फजल व करम से कामयाब प्रोग्राम हुआ और 4 मुकाम पे हम स्टोन लगाए थे। उन 4 मुकामात पर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कामों का इफ्तिताह किया। नहायत इत्मीनान के साथ लोग गुलपोशी भी किए उनके और काफ़ी मुड़ में थे। नौजवान उनके साथ सेल्फ़ी लेने की ख्वाहिश ज़ाहिर करे तो उनको मौका दिए और यहाँ के प्रोग्राम को कामयाबी के साथ अंजाम देने के बाद अभी रवाना हुए। हमारे वासिउद्दीन साहब के वालिद वसीम साहब जो मुसलसिल 2 दिन से ये इफ्तिताई प्रोग्राम में मसरूफ़ हैं, काफ़ी मेहनत करके यहाँ पर उन्होंने ये तमाम इंतज़ामात अंजाम दिए। इंशाअल्लाह और भी काम यहाँ के हैं और दीगर बल्दी हलकों में भी हमारे मंजूरा काम है। इंशाअल्लाह फरवरी के महीने में 1 या 2 बल्दी डिवीज़नों में इसी तरीक़े का प्रोग्राम रखेंगे और जो भी उस वक्त आसानी से दस्तयाब रहेंगे नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब या हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इन दोनों हसाब में से किसी से भी वो कामों का इफ्तिताह कराएंगे। अब फरवरी के महीने में यहाँ के याकूतपुरे के कामों का इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद होगी, जिसका चैनलों के ज़रिए अखबार के चलिए आपको इत्तला दी जाएगी। आज के प्रोग्राम में जितने लोग शरीक हुए उनका और मीडिया के तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसके ताउन से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। दोबारा एक मरतबा तमाम को शुक्रिया देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कोविड-19 के पॉजिटिव केसों में इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना के वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने आज महकमे सेहत को अलर्ट रहने और तीसरी लहर के दौरान मरीजों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की हिदायत दी। कोविड की तीसरी लहर का सामना करने की हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर हरीश राव ने कहा कि 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट्स और 2 करोड़ रैपिड एंटीजन किट्स
तेलंगाना के तमाम सरकारी सेहत की देखभाल के सेंटर्स अस्पतालों में तकसीम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर तेज़ी से फैल रही है, लेकिन इब्तदाई इशारे ये हैं कि डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में ओमिक्रॉन वेरिएंट की शिद्दत कम है। तेलंगाना के लोगों को घबराना नहीं चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ने लोगों से गुजारिश की कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने से गुरेज करें और भारी अखराजात बर्दाश्त करने के बजाय रियासत के सरकारी अस्पतालों से रुजू हों। सरकारी अस्पतालों में भी ऐसी सहूलियात मौजूद हैं जो कोरोना के इलाज के लिए काफ़ी हैं। टीआरएस पार्टी ने कोत्तागुडम के रुकन असेंबली वी वेंकटेश्वर राव के बेटे वी रघुवेंद्र राव को पार्टी से मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पी राजेश्वर रेड्डी ने रघुवेंद्र राव को फौरी असर के साथ टीआरएस पार्टी से मुअत्तल करने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि पालवंचा में 4 दिन कबल रामकृष्णा नामी शख्स ने अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुदकशी कर ली थी। रामकृष्णा ने खुदकशी से पहले ली गई सेल्फी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसमें रामकृष्णा ने उनकी इज्तिमाई खुदकशी के लिए टीआरएस लीडर राघवेंद्र राव को जिम्मेदार करार दिया, जिसने एक मसले के हल के लिए रामकृष्णा से मुबैना तौर पर उसकी बीवी को भेजने की शैतानी ख्वाहिश जाहिर की थी। तेलंगाना महिला कांग्रेस की नायब सदर पद्मा और वरलक्ष्मी की क़यादत में आज कांग्रेस की ख़वातीन, कायदीन व कारकुनान ने गांधी भवन में महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास मुंह पर काली पट्टी बांधकर एहतजाज किया। इस दौरान उन्होंने कोत्तागुडम के रुकन असेंबली वी वेंकटेश्वर राव के बेटे वी राघवेंद्र राव की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बाद-ए-अज़ां हैदराबाद सिटी सदर कविता ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। सिटी महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ मैं। हम जो 2 दिन से देख रहे हैं टीवी में, रामकृष्णा जी जो खुदकुशी करके खुद अपने फैमिली में जितने 4 मेंबर्स थे उनको खुदकुशी से उन्होंने मर गए, सुसाइड कर लेके उनका पूरा फैमिली मर गया। ये जो वनम वेंकटेश्वरलू का बेटा है, एमएलए का बेटा, कोत्तागुडम एमएलए का बेटा जो है वनम राघवा, उसको अरेस्ट करना इमीडिएट, उसकी वजह से ही आज ये इंसिडेंट हुआ। उन क्या समझ रहा अपने आप को, वनम राघवा वो एमएलए है क्या? एमएलए का बेटा है, एमएलए का बेटा है तो कुछ भी कर सकता है क्या? ये गुंडा राज चल रहा क्या तेलंगाना में? केसीआर क्या कर रहे, केटीआर क्या कर रहे? क्या बोले केसीआर और केटीआर, हम लोग तेलंगाना में जितने भी औरतें हैं, जितने भी महिला हैं, वो सब हमारे बहना है बोल के बोले। फिर बहनों के ऊपर एक फुल फैमिली, ఒక నిండు కుటుంబం, उनके ऊपर जो है अत्याचार करके उनका फैमिली को सुसाइड अटेम्प्ट करने को प्रेरित करा वनम राघवा। उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं, महिला कांग्रेस के तरफ से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सख्ती से सख्ती एक्शन उसके ऊपर ले और उसके जितने भी पुराने केस हैं निकाले। अगर एक बच्ची को रेप करे तो तेलंगाना में क्या करते हैं? एनकाउंटर करते हैं। एनकाउंटर का रिवाज है तेलंगाना में, वो चाहे वरंगल हो, वो चाहे रंगारेड्डी में हो, किधर भी हो, हमारे पास एक तरीका है एनकाउंटर करने का। वही तरीका राघव के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना है, ज़रूरी है। ये कोई एसएस राजामौली का सिनेमा नहीं है। विक्रमार्कुडु सिनेमा में दिखाया एसएस राजामौली, क्या दिखाया कि पॉलिटिशियन का बेटा पुलिस वाले के बीवी को उठा के लेके आता। यहाँ पे भी वही तरीका चल रहा, सिनेमा चल रहा है यहाँ पे। ये सिनेमा नहीं है, ये रियल लाइफ है। ये रियल लाइफ में क्या करना चाहिए, कानून उसके हाथ में लेना नहीं है। कानून का काम करते जाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एमएलए का बेटा हो या आम आदमी का बेटा हो, लॉ एंड ऑर्डर इज इक्वल फॉर एवरीवन, हर एक के लिए एक ही तरीका का है। और ये एमएलए का जो बेटा है वेंकटेश्वरलू का बेटा राघवा, उसको सख्त से सख्त सजा देना ज़रूरी है और हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुगलपुरा में वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल स्कूल में 15 से 18 साल के ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना, महकमा सेहत का स्टाफ, स्कूल इंतज़ामिया और स्टूडेंट्स मौजूद थे। शिफा देता अल्लाह दवाओं से, किसी के हाथ में शिफा रहती, किसी के हाथ में उसको फायदा रहता। इसलिए करोड़ों लोग वैक्सीन ले लिए, उसके बावजूद भी थोड़े लोग ये कहते हैं कि नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है और नुकसान भी है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। रियासत भर में रायतू बंधु हफ्तावार जश्न तकरीबात बड़े पैमाने पर जोश व खरोश के साथ मुनक़िद की जा रही हैं। ये बात तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने आज आलेर में मुनक़्क़िदा रायतू बंधु जश्न तकरीब में शिरकत करते हुए अपने खिताब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए चलाए जा रहे फलाही स्कीमात से काश्तकार काफ़ी खुश हैं और खातों में पैसे जमा किए जाने से किसान वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं। इस मौके पर गवर्नमेंट विप MLA सुनीता के अलावा TRS कायदीन और किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रियासती वज़ीर गंगूला कमलाकर ने कहा है कि BC गुरुकुल्स को वज़ीर आला KCR के ख्वाहिशात के मुताबिक काम करना चाहिए। उन्होंने आज महात्मा ज्योतिबा फूले तेलंगाना BC गुरुकुल सोसाइटी की बोर्ड मीटिंग की सदारत की। इस इजलास में BC वेलफेयर चीफ सेक्रेटरी B वेंकटेशम, MJP गुरुकुल सेक्रेटरी मालिया बट्टू और दीगर डायरेक्टर्स ने शिरकत की। इस दौरान साल 2022-23 में BC गुरुकुल स्कूल्स के स्टूडेंट्स को मुमकिन सहूलियात की फरहमी व दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर कमलाकर ने कहा कि BC गुरुकुल स्कूल्स में डिजिटल क्लासरूम्स की तादाद को मौजूदा 1276 से बढ़ाकर 1696 किया जाएगा। वहीं हॉस्टल्स को सोलार एनर्जी के जरिए वाटर हीटर्स मुहैया कराए जाएंगे। బిడ్డలు 7,000 మంది 8,000 మంది కన్నా ఎక్కువ చదువుకున్న పరిస్థితి మ్యాక్సిమం 10,000 మంది చదువుకోవచ్చు. మరి మిగతా చదువుకుందామనగా చదువుకోని ప్రభుత్వం అనుమతి చేయలేకపోయింది, అవకాశం దొరకలేదు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు ఉన్న గురుకులాలు 16-17 ఉంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 208 గురుకులాలు చేసింది. సో ఇప్పుడే BC బిడ్డ చదువుకుంటున్నారు, ముందుకు పోతున్నారు. కానీ అన్నిట్లలో చదువులో ఫుడ్ బాగా పెడుతున్నాము, నాణ్యమైన ఫుడ్ ఇస్తున్నాము, బ్రహ్మాండమైన ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాము. కానీ పొద్దున్న పిల్లలు స్నానం చేయాలంటే అక్కడ చలికి మాకు ఇబ్బంది పడుతున్నాము. సో మనం వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ హాట్ వాటర్ ఆర్ ఎనీ వామ్ వాటర్ అవ్వాలి. సో అందుకే నాకే మన చరిత్ర మన బిడ్డలు కదా కాబట్టి ఎంత ఖర్చు అయితే తక్కువ 40-50 కోట్లు అయితే అన్ని స్కూళ్ళల్లో गीजर हीटर सोलार हीटर పెడితే పొద్దున్న లేచి जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में जारी रायतू बंधु हफ्तावार जश्न तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर गर्ल्स हाई स्कूल में एस्से राइटिंग कंपटीशन मुनक़िद किया गया। इस मौके पर रायतू बंधु कामारेड्डी ज़िला सदर D अंजिरेड्डी, बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन G गंगाधर ने शिरकत की। उन्होंने स्टूडेंट्स की जानिब से लिखे गए मजमून की जांच की। बादअज़ा अपने खिताब में उन्होंने KCR हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए किए जा रहे फलाही इक़दामात पर रोशनी डाली। అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కరెంట్ ఇవ్వడం కానీ 24 గంటలు, మరి వారికి ఫర్టిలైజర్ సప్లై చేయడం కానీ, మన ఎరువు మందులు, మరి అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టి మరి ఇంకా రైతులకు ఏం చేస్తే వాళ్ళు బాగుపడతారనే ఉద్దేశంతో మరి రైతు బంధు కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసి ఈసారికి 8వసారి ఈ రోజుకి 10వ తారీఖు వరకు 50,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ యాసంగికి మనం ఇవ్వడం చాలా విచిత్రమైన విషయం. ఎందుకంటే ఎక్కడ లేదు ప్రపంచంలో, తెలంగాణలో మరి ఆ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉందంటే మనం తల్లిదండ్రులందరూ కూడా వ్యవసాయం చేసుకునే మనం బతికేటోళ్ళం కాబట్టి మరి చేస్తున్నటువంటి పనికి మనం ఏ విధంగా కృతజ్ఞత చెప్పాలి, మనం ఎంత కృతజ్ఞత చెప్తే మనకు ఇంకా ఫండ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి, మరి రైతులకు ఇంకా మేలు జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. అటువంటి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈరోజు మరి మొన్న 3వ తారీఖు నుంచి మరి 10వ తారీఖు వరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైతే రైతు బంధు ఉత్సవాలు చేస్తూ ఉన్నారో మరి అది విద్యార్థులకు కూడా తెలవాలి. మరి విద్యార్థులు రేపు పొద్దున మీ భవిష్యత్ అంతా వ్యవసాయం కానీ ఇంకా వేరే విధులలో పోయినప్పటికీ కూడా ముఖ్యంగా మన కుటుంబం జరిగేది బాగుపడేది వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు కాబట్టి మన తల్లిదండ్రులకు కూడా మరి ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి గొప్ప పనులని మనం చెప్పే అవకాశం కలుగుతుంది. మీ అందరికి కూడా ఈ వ్యవసాయం పట్ల అవగాహన కలుగుతుంది. మరి వ్యవసాయం చేస్తే ఎంత మంచి ఉంటుందో మరి ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం. డిగ్రీలు చదివినటువంటి చాలా మంది ఎంటెక్ ఎంఎల్ చేసిన వాళ్ళు కూడా మరి హైదరాబాద్ చుట్టు ప్రాంతాల్లో మరి అనేకమైన హార్టికల్చర్ పూల మొక్కలు కానీ మరి కూరగాయల పంటలు కానీ వాళ్ళు పండించి వందలాది ఎకరాలు వాళ్ళే చేస్తూ ఉన్నారు. రేపు పొద్దున మీరు అగ్రికల్చరల్
యూనివర్సిటీలో మరి అగ్రికల్చరల్ చదివినప్పటికీ కూడా వ్యవసాయం గురించి చదివితే కూడా మీకు మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. మరి వ్యవసాయం మరి ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడే ఏదన్నా ఉందంటే అది వ్యవసాయమే. మిగతా విషయాలకు వస్తే మనకు దాని మీద బాస్ ఎవరు ఉంటారు, దానికి ఇంకెవరు చెప్పాలా, దానికి అన్ని ఇటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అదే వ్యవసాయం చేస్తే మనకే ఉంటది. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం మనకు మంచి అవకాశాలు కల్పిస్తే మరి బాగుపడే అవకాశం ఒక వ్యవసాయం ద్వారానే ఉంటది. మరి ఆ రైతులను మనం ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే जिले निर्मल के शहर भैंसा में रैतू बंधु हफ्तावार जश्न के एक हिस्से के तौर पर भैंसा रैतू सदर सिराजुद्दीन एक्स काउंसलर की सदारत में किसानों ने जश्न मनाते हुए सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर किसानों ने सीएम केसीआर और एमएलए के तस्वीर को दूध से धोया। किसानों के खातों में हुकूमत की जानिब से रकम जमा किए जाने पर मसरत का इजहार किया। तो आज हमारे सीएम साहब जो काश्तकारों को जो 10,000 रुपये जो डालते हैं हर काश्तकार को, उसी खुशी में मनाया जा रहा है। पूरे कोई और स्टेट में ऐसा काम नहीं हो रहा जो तेलंगाना में हो रहा है, कोई इसी खुशी में हम इस प्रोग्राम कर रहे हैं। तंजीम नुसरतुल मसाकीन की जानिब से 14 जनवरी को मरकज़ जमीयत अहले हदीस लंगर हाउस में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया जा रहा है। जमीयत की सरपरस्ती में इस कैंप का आगाज़ सुबह 10 बजे होगा जो 6 बजे तक जारी रहेगा। नाज़िम जमीयत डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी ने मीडिया को तफसील बताई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की जानिब से वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे ख़िदमात अंजाम दिए जाते हैं, रिफ़ाई ख़िदमात और रिलीफ़ वर्क होता है। इसी तरह आप तमाम की खिदमत में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, वो है ब्लड डोनेशन कैंप, जो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा 14 जनवरी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मस्जिद मोहम्मदिया अहले हदीस लंगर हाउस पर मुनक़िद होगा। इस मौके पर थैलेसीमिया के जो मरीज़ है, ऐसे मरीज़ों के लिए आपका ब्लड डोनेट करना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसे मरीज़ हैं जो खून की कमी की वजह से वो सेहतमंद हो नहीं सकते जब तक कि उनको हर महीना या हर हफ़्ता खून ना दिया जाए। इसलिए ऐसे मरीज़ों का ताउन करना हम सब की अखलाक़ी और मिली ज़िम्मेदारी है। इसलिए जमीयत अहले हदीस ने ये प्रोग्राम रखा है कि आइंदा जुमा 14 जनवरी को इंशाअल्लाह एक NGO तंजीम है नुसरतुल मसाकीन, उनकी जानिब से जमीयत अहले हदीस की सरपरस्ती में मस्जिद मोहम्मदिया अहले हदीस पिलर नंबर 102 पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये कैंप रहेगा, जिससे आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इंसानियत की खिदमत के लिए अपना खून देकर उनकी जानों की हिफाजत के आप ज़ामिन बने। जो लोग खून की कमी की वजह से जिनको जो है सेहत के लिए बहुत ही दुश्वारियाँ हैं, और ख़ास तौर से थैलेसीमिया के जो मरीज़ बच्चे हैं, उनके लिए आपका ये खून इंशाअल्लाह उनकी सेहत का ज़ामिन बनेगा। मैं तमाम मर्द व ख़वातीन से गुजारिश करता हूँ कि आइंदा जुमा मरकज़ अहले हदीस लंगर हाउस तशरीफ़ लाएँ। यहाँ पर इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ बेड भी रखे गए हैं, ख़वातीन का अलग इंतज़ाम है और माहिरीन डॉक्टर रहेंगे। आपका खून इंशाअल्लाह लोगों के लिए, ऐसे परेशान हाल लोगों के लिए, मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोधन शहर में वाक़ स्कूल्स के 15 से 18 साल के ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज़ अमल में आया। इस खुसूस में मुकामी सेहत आमा के अफराद ने बोधन पहुँचकर तलबा व तालिबात की तशख़ीस करते हुए टीका अंदाज़ी की। इस मौके पर मुकामी नायब DMHO डॉक्टर विद्या इंचार्ज प्राइमरी हेल्थ सेंटर रक्कासपेट डॉक्टर अंजलि जामकर, बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस पार्टी हबीब खान खदीर रुकन बल्दी, अखिल फारूकी नुमाइंदा रुकन बल्दी, समीर साम TS मीसा टीचर्स यूनियन सदर, सैयद रब्बानी, शाकिर अहमद मुदर्रिस, सदर मुदर्रिस मीर जावेद, सदर मुदर्रिस सैयद खैसर के अलावा दीगर मौजूद थे। गवर्नमेंट आलोचन ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి, ఇచ్చినట్లయితే మన కరోనా సోకదు, దాని నుంచి రక్షణ వస్తుంది, మనం హాస్పిటల్ తగ్గుతూ ఉంటాం. సో ఎవరు కూడా ఎటువంటి ఫియర్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. వ్యాక్సిన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇట్ గివ్ వాస్ట్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ టు ద స్టూడెంట్స్. Nobody
everybody feared about this vaccine. Here, lot of rumors created among the people. Lot of the people, they do not come forward to take vaccine. But vaccine is for sake of the human life. It decreased the 17 times risk. Who have taken 50 to 80% give life protection to the vaccine. That is the importance of the vaccine. So, we leave all the fears or all the bad propaganda against the vaccine. You will forget that and happily, willingly, if you take the vaccine, it gives a lot of protection to our body. So, kindly cooperate with the health workers and cooperate with your staff. Take willfully as possible as all the students if you take vaccine. It is a give better protection to our body. So kindly cooperate. Thank you. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने अपने ओहदे का जायज़ा संभालने के बाद पहली बार जुमे के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने चार मीनार के अतराफ व अकनाफ की आवाम से मुलाकात की। जुमे की नमाज के मौके पर मक्का मस्जिद के पास इंतजामात का जायज़ा लिया। बाद मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने उम्मीद जाहिर की कि शहर में अमन की बरकरारी के लिए आवाम से ताउन हासिल रहेगा। उन्होंने इस मौके पर आवाम को जुमे की मुबारकबाद भी दी। मेरा नाम है सीवी आनंद, मैं हैदराबाद शहर का नया कमिश्नर पुलिस हूँ। आज पहला जुम्मे के नमाज के लिए मैं आया। मैं यहाँ के आवाम से मुलाकात करने के लिए बहुत खुशी हुई, सबसे मिल सका मैं। और आने वाले दिनों में आवाम सबका मैं कोऑपरेशन चाहता हूँ यहाँ पर शांति और अमन बनाए रखने में। सबको जुम्मा मुबारक और सबके साथ मिलने की खुशी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में 24th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और तेलंगाना के वजीर केटीआर ने किया इफ्तिताह। अकबरुद्दीन ओवैसी ने रेन बाजार में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। अवाम ने गुलपोशी करते हुए किया खैर मकदम। एमएलए पाशा कादरी समेत दीगर ने की शिरकत। कोविड के बढ़ते पॉजिटिव केसों के पेश नजर हरीश राव की महकमे सेहत को हिदायत। तीसरी लहर के दौरान मरीजों की जरूरियात को पूरा करने पूरी तरह तैयार रहने पर दिया जोर। टीआरएस पार्टी ने कोत्तागुडम एमएलए के बेटे को पार्टी से किया मुअत्तल। पार्टी जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर रेड्डी ने राघवेंद्र राव को फौरी असर के साथ मुअत्तल करने का किया ऐलान। कोत्तागुडम एमएलए के बेटे रघुवेंद्र राव की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। तेलंगाना महिला कांग्रेस ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर किया एहतजाज। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने किया पुराने शहर हैदराबाद का दौरा। चार मीनार के अतराफ आवाम से की मुलाकात। शहर में अमन की बरकरारी के लिए आवाम से ताउन हासिल रहने की जाहिर की उम्मीद। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।